तो इस बार फुटबॉल वर्ल्ड में और फुटबॉल फील्ड पर काफी कुछ देखने को मिला, जहां पर रोनाल्डो के 2 गोल्स को डिसअलाउ कर दिया गया। मेसी के फैमिली फ्रेंड की ओर से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आया है, और ये दोनों लेजेंड्स कब लेने वाले हैं यहाँ पर रिटायरमेंट, ये और बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे अपने यानी कि हमारे अपने ईश खेड़ा के साथ, ओनली ऑन मैच की बात फुटबॉल एडिशन में। हाय ईश, हाउ आर यू? Hi Neve, I'm good. How are you? आई एम डेफिनेटली गुड। ईश, तो सबसे पहले अपने कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करते हैं आपके बड़े भैया यानी कि रोनाल्डो के साथ। ठीक है, तो डेफिनेटली दैट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस व्हेन रोनाल्डो हैड 2 गोल्स डिसअलाउड एंड अगेंस्ट अल फतेह, और उनकी पियर्स मॉर्गन के साथ वो कॉन्वर्सेशन वायरल हो गई, जहां मॉर्गन को ये बोलते हुए साफ सुना गया that he was robbed, जिस पर रोनाल्डो का ये भी रिप्लाई आया जिसमें उन्होंने कहा they don't like me to score। क्या आपको नहीं लगता कि जब से उन्होंने अल नसर को ज्वाइन किया है, उसके बाद से रोनाल्डो को एसपीएल ऑफिशियल्स की तरफ से वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो वो डिजर्व करते हैं? Have these decisions been unfair according to you? A lot of decisions haven't gone his way, but I will not pinpoint the referee and say कि उसने जान के ऐसा किया. Agreed, वो decisions गलत हुए हैं, but it's not deliberately that those decisions have gone against him. And of course, Ronaldo is on the goal of scoring 1,000 goals, so he'll feel a bit frustrated, and that is why he made this statement, I think. But otherwise, I think it's a fair league overall, and it's unlucky that these decisions are going against him. हमने फील्ड पर और ऑफ फील्ड पर भी रोनाल्डो को काफी ज्यादा एनिमेटेड देखा है, बट ऑन द अदर साइड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम मेसिस फैमिली फ्रेंड, जिन्होंने ये क्लेम किया है कि वो इंटर मायामी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बार्सिलोना लौटना चाहते हैं। बट अनदर ट्रूथ इज दिस कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है वेदर ही वांट्स टू प्ले विद बार्सिलोना और नॉट। बट उनके फ्रेंड ने ये तो क्लेम किया ही है कि मेसी विल मूव बैक टू स्पेन विद हिज फैमिली। Yeah, so that's true. I think it's an open truth. Everybody knows it. Ki Leo Messi wants to move back to Barcelona whenever he ends his contract or whenever he leaves US. वहीं से वो पैदा हुआ है, वहीं से बड़ा हुआ है, ला मासिया प्रोडक्ट है, and he obviously loves Barcelona. So I don't know if he'll come back as a player, but I can see him coming back in some capacity. Whether he could be a brand ambassador for the club, a technical director maybe, or in some capacity to help his childhood club Barcelona. We'll see what happens. We'll see what happens. The time will tell us this thing. But as well as like we all know that Ronaldo is 39 now. I mean, a sad part, a sad truth. But now he's still going like very strong. Okay, so that's the one thing over which we can joy a lot. But how long do you think Messi can play? और अगर मैं थोड़ा और डायरेक्टली आपसे पूछ लूँ तो आपको क्या लगता है दोनों में से पहले कौन रिटायर होगा? I think it's up to them and their motivation. They can choose whenever they want to retire. But if you see right now, Ronaldo ka ek he has an objective to achieve, which is to reach 1,000 goals. He's close to 920 goals right now, so 80 more goals to go. So I don't think he will even look to retire before that because वो उसका objective है. Whereas अगर आप मेसी को देखो, the objectives or the things he wanted to achieve in world football, I think उसने वो सब achieve कर लिया. He's won the World Cup. He's won 2 Copa America trophies. He's won the Ballon d'Or so many times. बट अब इससे थोड़ा सा और फोकस शिफ्ट करते हैं, तो लिवरपूल ने इप्सविच के अगेंस्ट 4-1 से एक बड़ी आसानी से उस कॉन्टेस्ट को जीत लिया। इट्स क्रेजी हाउ दे आर स्टिल इन्वॉल्वड इन 4 कॉम्पिटिशंस अनबीटन इन द चैंपियंस लीग एज वेल। डू यू थिंक अ ट्रेबल इज अ रियल पॉसिबिलिटी फॉर देम दिस सीजन? See, मैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ, तो I will not root for them. I will root against them. But yes, it's everybody knows that they are playing beautiful football right now under Arne Slot. Premier League 99% they will end up winning it. So one trophy in their bag, they will equal Manchester United's record. बात आती है FA Cup पे, it's a very draw heavy tournament. तो who will they face in the next round depends a lot. अगर for example if they face a Manchester City or an Arsenal, अभी वैसे City का फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं है, but still if you face difficult teams then the chances of you winning a treble is less likely. Same in the Champions League, if you face a difficult team say a Barcelona in the quarter final, so वो उसके chances भी कम हो जाते हैं. But there is no denying that they are playing beautiful football. Carabao Cup में they are down 1 goal in the first leg, but like the way they are playing football, you can always see कि they always have a chance to win major trophies.
बट अगर मैं आपको कहूं कि उनके ट्रेबल जीतने की पॉसिबिलिटी को आपको 1 to 10 के स्केल पर रेट करना है, तो वेयर वुड यू रैंक दैम? I would give them a 6 on 10, which is also a very big number because या 60% chance अगर मैं आपको 3 trophies and Champions League one of those trophies अगर जिता रहा हूँ, so that's quite a lot. आर्सेनल के लिए अगर हम बात करें तो आर्सेनल के लिए वॉल्व्स के अगेंस्ट भले ही वो गेम जो था वो एक खराब नोट पर जरूर शुरू हुआ था, बट उसके बावजूद भी उन्होंने वो मैच जीत लिया। लेकिन जो हुआ वो उस पर बात करना बेसिकली बनता है। माइकल ओलिवर ने माइल्स लुइस स्केली को रेड कार्ड दिखाया जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था। व्हाट डू यू थिंक वाज दैट चैलेंज वर्दी ऑफ अ स्ट्रेट रेड कार्ड, या आपको भी ये लगता है कि रेफरी ने गलती की थी जैसा कि आर्टेटा ने भी क्लेम किया? So there are two things. Firstly, FA ने उसका जो रेड कार्ड है वो ओवरटर्न कर दिया, which means clearly it was a mistake and that is why his red card now is overturned. And the second thing is if you see the tackle in real time ना, तब I will feel sad for Michael Oliver because वो तब real time में लग रहा था कि भाई कितना dangerous tackle मारा है and it could have been a goal scoring opportunity. But जिस position पे वो foul हुआ, they were like further away from the goal, from the penalty spot, even they were just starting a counter attack. लेकिन उसके बाद अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो उनकी नई साइनिंग है ओमार मार्मुश, शोड सम स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस इन दैट 3-1 ओवर अगेंस्ट चेल्सी। उनकी मूवमेंट ऑन फील्ड काफी अच्छी थी, अनलाइक अब्दू कौदर खुसनोव, एज ही लुक्स रेडी फॉर द प्रीमियर लीग। चेल्सी के खिलाफ जो आपने देखा उसके बेसिस पर इन दोनों साइनिंग्स को आप कैसे रेट करेंगे? क्या आपको लगता है दैट विल सिटी फिनिश इनसाइड द टॉप 4 आफ्टर देयर अराइवल? So both of them good signings on paper. Omar Marmoush almost scored a goal that was ruled offside, and Kusanov का start ही बहुत खराब हुआ. First he gave away a goal to Chelsea and then got a yellow card all in the first 4 minutes. So he seemed a lot nervous. But if you look at objectively the signings, they are good signings and Manchester City have done good business in the transfer window. One I would say surprising thing was that Pep Guardiola just bought them like 3 days back and started them in the main lineup. So normally ऐसा होता नहीं है. बट चेल्सी पर इस सीजन में फिर से चैंपियंस लीग और यूरोप लीग से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, हम सब वो देख पा रहे हैं। बट सिटी के खिलाफ और बॉर्नमाउथ की नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट 5-0 की शानदार जीत के बाद अब चेल्सी सिर्फ और सिर्फ चेरीज के गोल डिफरेंस के बेसिस पर आगे है। ठीक है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट बॉर्नमाउथ आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड साइड्स इन द डिवीजन 2। चेल्सी के पास मैन सिटी, न्यूकासल, फॉरेस्ट और शायद बॉर्नमाउथ के पीछे छोड़ते हुए 4th पोजीशन पर फिनिश करने का क्या मौका है, इसके बारे में आप? So that's the beauty of Premier League यार। ये मॉडर्न फुटबॉल जब से आया ना, फुलहैम, ब्रेंटफोर्ड, नॉटिंघम फॉरेस्ट, बर्नमथ ऑब्वियसली, व्हाट ब्यूटीफुल फुटबॉल दे आर प्लेइंग। एंड एक विन से दे कैन क्लाइम इन द टॉप 4 and एक ड्रॉ से दे कैन कम डाउन। एंड मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस। आई नेवर थॉट कि मैं एक ब्रेंटफोर्ड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट या बर्नमथ वर्सेस लिवरपूल के मैच के लिए एक्साइटेड हूँगा, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। आई एम वेरी एक्साइटेड। एनीथिंग कैन हैपन, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, बिकॉज एक ड्रॉ से आप चैंपियंस लीग के प्लेसेस लूज कर रहे हो, जैसे आपने बताया चेल्सी के लिए। सो टाइम विल टेल, बट आई एम जस्ट हैप्पी टू सी यू नो मतलब मिड टेबल टीम्स डूइंग सो वेल। सो लेट्स सी क्या होता है। चैंपियंस लीग से अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ला लीगा की तरफ, बिकॉज बार्सिलोना thrashed Valencia with a margin of 7-1 on Sunday, which is a huge margin. And you know what's more interesting? In the last 5 games, they have scored 23 goals. Another huge number. ये तो मानना पड़ेगा कि हांसी फ्लिक की टीम कुछ हफ्तों पहले अपने परफॉर्मेंस से जो डिसअपॉइंट कर रही थी, वो धीरे-धीरे फिर से ट्रैक पर आ रही है। Yeah, I think on that day, if Barcelona का दिन होता है ना, so they are so better than any of the teams you cannot even imagine यार। अभी जैसे आपने बताया 7-1, इतने क्रेजी लग रहे थे यार। लमीन यमाल प्लेइंग लाइक क्रेजी, लेवेंडोव्स्की प्लेइंग लाइक क्रेजी, केम फ्रॉम द बेंच, राफिनिया प्लेइंग लाइक क्रेजी, पेड्री, गैवी, फ्रैंकी डियोंग, एक मतलब बहुत ही अमेजिंग फुटबॉल। एंड दैट इज व्हाई यू कैन आल्सो नॉट कीप देम आउट ऑफ इवन विनिंग द ट्रेबल। आई नो अभी वो ला लीगा में दे आर थोड़ा नीचे, एंड चैंपियंस लीग दे आर कंटेंडिंग, एंड कोपा डेल रे में दे आर आल्सो देयर। बट इफ इट इज देयर डे, बस कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। एक ऑफ डे होता है, दे एंड अप लूजिंग पॉइंट्स, but otherwise if you look at the entire team, I think it's a beautiful team. But if we are looking at the other side of the Barcelona, अब वो Real Madrid से 7 points पीछे है। Do you think they still have a chance to win the league? I think so. With the way they are playing football,
I think they will always have a chance. Still more than, I would say, 15, 17 games to go in La Liga as well. And Real Madrid ka bhi abhi, like when they face the bigger teams, you can see that unka, because they don't have a proper center back. Your Eder Militao is injured. Lucas Vazquez plays right back because Dani Carvajal is injured. So against the stronger oppositions, they often tend to concede a lot of goals. तो अगर ऐसा होता है तो बार्सिलोना विल ऑलवेज हैव अ चांस, एंड इवन एथलेटिको will always have a chance. तो देखते हैं. That's the beauty of La Liga also. It's very exciting कि क्या होएगा La Liga के टेबल में. But Barcelona looking strong and still a lot of games. थैंक यू सो मच ईश. आज आई एम श्योर आपको मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्वेश्चन से ज्यादा पोक नहीं किया, बट आई डू माई होमवर्क फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम कि आपको वो सारे क्वेश्चंस भी दागे जाए यहाँ पर. बट थैंक्स वंस अगेन ईश फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन. थैंक यू. Thank you, Neev. Thank you so much for having me.